Yeah, today we'll talk about structural organization in animals. Yeah, so in there are different types of animal. First of all, there are two different type of animals. One is your unicellular, another is your multicellular organisms. Basically, one is your unicellular organism, another is your multicellular organism. Yeah, for unicellular organism, single cell performs a lot of function. There is a single cell only which performs a lot of function, like your digestion, respiration, reproduction. Everything is done by just a single cell. Yeah, just a single cell. Similarly, in multicellular organisms, there are different cells. Like this one is a group of cell, or we can call it as a tissue 1. This one is another group of cell, which is tissue 2. The third one is, I can give it a different color, like this one is another group of cell, this one is your tissue 3. Yeah, so different tissues perform different function. Yeah, different cell different perform different function. Yeah, understood. There are two types of cell in like there are two types of organisms. If I'll talk about the primitive organisms, then let's come to our animal kingdom. Yeah, in animal kingdom, you guys must have remember, like you must have studied the phylum Porifera. Remember the phylum Porifera? Then comes your Coelenterata and so on. Yeah. So if I'll talk about the Porifera, what happens here? A group of cell, okay? A group of cell togetherly they form cell aggregate. What? Cell aggregate, and they perform the same function. Yeah, a group of cell, different cell, different function. Yeah, for example, if this cell will perform like digestion, this cell will perform your reproduction, and another cell will be there which will perform your respiration, and so on. Yeah, and so on. Different cell perform different function. Yeah, likewise in Coelenterata, the tissue level organization is found. Okay, in tissue level organization, different group of cells, forming a tissue, and different tissue different function. Yeah, understood. Likewise, if I'll talk about the basic unit of life, what is that? That is your cell, and cell, group of cell performing a similar function called as tissue, and a group of tissue will will form a what? Organs, and and different organs comprises and combine to form organ system. So kids, you might have studied this in your animal kingdom introduction part, basics of classification. In your basics of classification, what you have studied? A cell level of organization, then your tissue level of organization, organ level of organization, and organ system level of organization. In cell level of organization, in case of Porifera, you guys have studied that cell aggregate are there. There is no formation of tissues, and all the cells perform different function. Likewise, in tissue level of organization, there are different tissues, and different tissues perform different function. Yeah, and a group of tissues combinedly they form organ. Here there is only organ, there is no organ system. For example, can you give me some examples of organs, like your stomach? If I'll talk about your stomach, yeah, your heart, your kidney, yeah,
like this, kidney, all these are what? Organs. But if organ system I will talk about, can anyone tell me like some examples of organ system? Yeah, respiratory system, reproductive system, your digestive system, your circulatory system. Yeah. So now the different so क्या होता है कि different organ system perform different function. Yeah. So now let us talk about the meaning of tissue. Yeah. What is the definition of tissue? Tissue is basically group of cell along with intercellular substances. These are a group of cell. Yeah. They are having intercellular substances. Yes or no? Yeah. Intercellular substances. These are intercellular substances in between two cells. So group of tissue cells along with intercellular substances, and they all perform a same function. Yeah, same function. Group of cell performing the same function, we call it as tissue. Yeah, we'll know the common example. And if we'll talk about animal kingdom, the first the phylum we'll talk about today is vertebrata. We'll talk about frog today. ठीक है, तो फ्रॉग का नाम क्या है जो कि हम लोग बोलेंगे फ्रॉग कॉमन द कॉमन इंडियन फ्रॉग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. क्या है ये? कॉमन इंडियन फ्रॉग. तो इसका सिस्टमैटिक पोजीशन अगर देखेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन if we'll see, systematic position, what is the common name? Sorry, the scientific name is Rana tigrina. अब रिसेंटली राना टिग्रिना का नाम चेंज होके क्या रखा गया है? होप्लोबाथ्रकस टाइगेरिनस. या होप्लोबाथ्रकस टाइगेरिनस. या this one is your genus name, this one is your specific name. This is your genus and this is your species. Okay, so Hoplobactericus tigerinus and Rana tigrina are their scientific name. Yeah. If we'll talk about like systematic position, phylum क्या है? एनिमल किंगडम में कौन से फाइलम में राना टिग्रिना आता है? फाइलम है कॉर्डाटा. या फाइलम कॉर्डाटा, सब फाइलम वर्टिब्राटा. सुपर क्लास क्या है? टेट्रापोडा. मतलब they are having four पोडियास, मतलब 4 लिम्स होते हैं उनका. ठीक है, 4 limbs, 2 hind limbs. या सेकेंड, देन कम्स योर क्लास इज व्हाट? एम्फीबिया. क्लास. ऑर्डर इज योर एन्यूरा. फैमिली Ranidae. Genus is what? Rana or Hoplobatrachus. Species. This is your systematic position. If this structural organization in animals always comes like in a long question in your board examination. So if the question, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि लाइक फ्रॉग का सिस्टमैटिक, अगर क्वेश्चन किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन आए, लाइक उनका मॉर्फोलॉजी आए या फिर एनाटॉमी आए, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम आया लाइक फ्रॉग के, तो फिर आप लोग क्या करना, पहले स्टार्ट करना सिस्टमैटिक पोजीशन से. सिस्टमैटिक पोजीशन में एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, लाइक फाइलम,
सब फाइलम, सुपर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. स्पीसीज क्या है आपका? टिग्रीना और टाइगेरिनस. या so this is what our systemic position is. Then next heading is habitat और habits. वो लोग रहते कहाँ? ओके, सो नाउ व्हाट आर द हैबिटेट्स? हैबिट्स एंड हैबिटेट. वो रहते कहाँ हैं? अरे भाई, मेंढक हर जगह रहता है. पकड़ लो, आपका पॉन्ड में रहता है वो लोग. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, येट पॉन्ड में रहता है. और कहाँ रहता है? टैंक्स में रहता है, पूल्स में रहता है, डिचेस में रहता है. ठीक है, एवरीवेयर वी कैन फाइंड द फ्रॉग्स. सो अनदर वर्ड वी हैव जस्ट स्टडीड दैट amphibious, or amphibia. What do you mean by amphibious or amphibia? मतलब they are having dual habitat. ठीक है, dual habitat मतलब दोनों जगह पे वो लोग रह सकते हैं. dual, both on land and water. They can live both on land and water. That's why they are called as amphibious. If we'll talk about the feeding, so the adult frogs are carnivorous. Likewise, the larva, which is, what is the larva? Larva of frog, what is that? Tadpole. It is herbivorous. herbivorous. या सो क्या बोली मैं? फीडिंग में क्या होता है? एम्फीबायस का मतलब समझ गए. देन फीडिंग, खाते क्या है? एडल्ट लोग क्या है? कार्निवोरस होते हैं. मतलब वो लोग क्या करते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, जब भी आप एक मेंढक को मतलब कोई भी एक फ्रॉग को खाना खाते हुए किसी ने देखा है? वो ऐसे ही अपना टोंग बाहर निकलता है. उनका टोंग ना ऐसे बाइफर्केट की तरह होता है. ठीक है, वो ऐसे ही एक कीड़ा को ऐसे इंसेक्ट उड़ रहा होता है अपना मस्त. ठीक है, वो अपना कीड़ा को देखता है, ऐसे उसको पकड़ लेता है. ठीक है, फिर डायरेक्टली वो क्या करता है? वो मस्त अपना टोंग को अंदर खींच लेता है. कैसे लेता है? टोंग को वाइट कलर में, रेड कलर में करती हूँ. ऐसे टोंग को ट्विस्ट करके ऐसे करके अंदर ले आता है. ठीक है, एंड एज इट इज़ मतलब इंसेक्ट जैसा रहता है ना, वो ऐसे ही उसको निगल लेता है. ठीक है, तो देन इसको कार्निवोरस कहते हैं. हर्बिवोरस मतलब दे eat like small plants and small plants and like small prey, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे को वो खा के जिंदा रहते हैं. ठीक है, देन we'll talk about normally frogs are poikilothermous. ठीक है, तो भाई पोइकिलोथर्मस का मीनिंग क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड animals. Yeah, so what do we mean by cold blooded animals? Their body temperature is not constant. Their body temperature is not constant. That's why their body temperature changes according to the surrounding they live. ठीक है, अगर मेंढक पानी में रहता है तो पानी के हिसाब से उसका बॉडी टेम्परेचर घट जाएगा. अगर बहुत ज़्यादा धूप में रह रहा है तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. ठीक है, तो दैट्स वाई आप लोग कभी मेंढक को बहुत ज़्यादा पीक समर मतलब बहुत ज़्यादा तब धूप होगा तब देखे हो, या फिर बहुत ज़्यादा विंटर, जितना ज़्यादा लाइक विंटर को कलर को मैंने ऐसे कर रही हूँ. ठीक है, बर्फ़ को ऐसे. ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी ऐसे स्नोफॉल मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है. कभी मेंढक को देखे हो बहुत ज़्यादा पीक समर एंड विंटर में?
आप लोग नहीं देखे होंगे, क्योंकि इन पीक विंटर में फ्रॉग लोग ना विंटर स्लीप में जाते हैं, ठीक है, विंटर स्लीप। वो लोग ना उस टाइम पे अपना खाना वाना पूरा छोड़ देते हैं, बहुत टाइम पर, कुछ टाइम तक वो खाना पीना छोड़ देते हैं, एंड ग्लाइकोजन फीड क्या करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज पे, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोरेज पे वो लोग जिंदा रहते हैं। रिस्पायर कैसे करते हैं, स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और स्किन के थ्रू, ठीक है, ठीक है। लाइकवाइज इसको हम लोग एक टर्म कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। सिमिलरली समर में क्या होता है, समर स्लीप जिसको बोलते हैं, कुछ टाइम के लिए ना फ्रॉग लोग लाइक मड में या फिर ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं समर स्लीप और एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, ठीक है। तो कुछ टाइम तक ना मड या ऐसा कुछ जगह पे जाके छुप जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम को ठंडक देता है, या फिर वो प्रोलॉन्ग टाइम तक, जितना तक बहुत ज़्यादा हीट पीरियड होता है, जितना टाइम तक, उतना टाइम तक वो लोग छुप जाते हैं, ठीक है। तो मतलब तब अगर उनका बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा वेरी करेगा ना, वो बहुत ज़्यादा उनको हीट लगेगा, तो दैट्स वाई वो लोग समर स्लीप एंड विंटर में और समर में ना वो लोग निकलते नहीं हैं। दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं, हाउएवर इट इज़ बिलीव्ड, ये पीरियड को वो लोग जो जितना उनका लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज और फैट बॉडी में जितना स्टोर है क्या रहता है, एंड लाइक जितना एनर्जी रिक्वायर होता है उनकी बॉडी को, वो सब ग्लाइकोजन के ऊपर डिपेंड करता है इन द लीवर जो स्टोर ग्लाइकोजन को यूज़ करके ज़िंदा रहते हैं। और उस टाइम पे ना वो ऑक्सीजन नीड को मीट करने के लिए ना वो थ्रू देयर स्किन दे रिस्पायर। एंड समर में क्या करते हैं ना, वो लोग मड में जाके छुप जाते हैं टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है। दिस पीरियड लिटिल एक्टिविटीज़ होता है, लिटिल एक्टिविटीज़ लाइक कुछ एक्टिविटीज़ हो जाता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता, ठीक है। अनदर वन इज़ द कैमोफ्लेज, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कैमोफ्लेज? दे कैन चेंज देयर body color according to the surrounding। कभी आप लोग फ्रॉग को देखे हो, लाइक कभी कभी ना वो लोग क्या करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ना वो लोग अपने अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर्स। दैट्स वाई दैट फीचर को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। एंड अनदर टर्म इज व्हाट, मिमिक्री। जो बॉडी कलर ना वो चेंज करते हैं, जो प्रोटेक्टिव कलरेशन, जो प्रोटेक्टिव कलर में वो लोग चेंज करते हैं अपने आप को, उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री। माने वो मिमिक करते हैं विद द सराउंडिंग से। एंड दैट टर्म माने द एबिलिटी, इसको हम लोग बोल सकते हैं एबिलिटी, ठीक है। The ability to change their body color according to the surrounding is called as camouflage. Likewise, the protective coloration they mimic according to the environment, we can term it as a mimicry, ठीक है। Now another heading is your morphology. Morphology of frog. So now let us discuss about the morphology of the frog, ठीक है। So let me draw the diagram.
दिस वन इज़ द डायग्राम ऑफ द फ्रॉग। थोड़ा बहुत तो फ्रॉग की तरह दिख रहा है, ठीक है। सो अगर मैं उसको लेबल करूँ तो ये क्या है, पहले मैं दिस वन इज़ नहीं, एक डिफरेंट कलर से ट्राई करती हूँ, ऑरेंज से ट्राई करते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज़ योर eyes. So the body of a frog is divided into what? Head and trunk. So what are the parts that is absent in a frog's body? Those are your neck is absent, also tail is absent. Yeah, neck and tail is absent in a frog's body, ठीक है। So this one is your eyes, this one is your head, and this portion is your trunk, ठीक है। These are your forelimbs, which is of 1 2 3 4, कितना डिजिट है, 4 digits, yeah। Similarly this is your hind limbs, hind limb डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट है, 5 डिजिट्स है। एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा, डिस्टिंग्विशिंग, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या है, वेब्ड फीट, क्या है, वेब्ड डिजिट्स। मतलब क्या है, द डिजिट्स ऑफ द फूट आर वेब्ड, मतलब दे आर टाइप ऑफ, ऐसे यहाँ पे ना एक ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट these are your what, nostrils, ठीक है। and this one is your tympanum, which works as your ear। मतलब क्या, ear का फंक्शन क्या है, to collect the sound from the environment। so these are your external ears which collect the sound from the environment, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे the skin of a frog। स्किन कैसा है, ऑलवेज कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, स्मूथ एंड व्हाट, स्लिपरी। मतलब क्या है, स्किन हमेशा स्लिपरी होगा, मॉइस्ट होगा। आप लोग कभी फ्रॉक को टच किए हो, टच करने से कैसा फील हो जाए, हमेशा मतलब ऐसे स्लिपरी नहीं फील होता, मॉइस्ट एंड स्मूथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है। म्यूकस की वजह से क्या होता है, फ्रॉक का स्किन हमेशा स्लिपरी और स्मूथ और मॉइस्ट रहता है, ठीक है। स्किन ऑलवेज मेंटेन इन अ स्मूथ एंड मॉइस्ट टेक्सचर, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट कलर ऑफ द बॉडी। कलर कैसा है, body have always two sides, one is our dorsal side, another is our ventral side। so अगर मैं ऐसी खड़ी हो जाऊंगी, मेरा डॉर्सल साइड कौन सा होगा, आगे वाला होगा या कि पीछे वाला, क्या, डॉर्सल वेंट्रल। बी फॉर बेली हम लोग बोलते हैं ना, वेंट्रल इज ऑलवेज आवर फ्रंट साइड, ठीक है। डॉर्सल इज आवर बैक साइड, ठीक है। तो फ्रॉग का जो कलर है, their dorsal side is olive green color, yeah, dorsal side olive green color and having a dark irregular spots, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉग का हम लोग जो डायग्राम बनाए थे, यहाँ पे क्या है, उनकी डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज़ ऑलिव ग्रीन इन कलर। ये कलर क्या है, ऑलिव ग्रीन है, सॉरी ये वाला ग्रीन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कौन सी कलर की है, ऑलिव ग्रीन की है।
और उसमें क्या है, बहुत सारी पैचेस है, डार्क पैचेस है, डार्क इरेगुलर पैचेस है ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। अगर हम लोग एक मेंढक को कभी देखा है ऐसे पेट के ऊपर ऐसे खड़े होकर, मीम वगैरह आप लोगों ने नहीं देखा, उसमें उसका बेली का कलर क्या होता है, वेंट्रल साइड इज पॉल येलो, ठीक है, वेंट्रल साइड इज पॉल येलो कलर, ठीक है। एंड क्या है, इनकी स्किन के बारे में अगर बोले तो स्किन क्या करता है, और एक चीज़ यहाँ पे लिखने के लिए मैं भूल गई, देखो यहाँ पे मॉइस्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी स्किन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। स्किन क्या होता है, मॉइस्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी, ठीक है। और क्या होता है, ये फ्रॉग ना नेवर ड्रिंक्स वाटर, तो वाटर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, ठीक है। स्किन का और एक फंक्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अभी विल डिस्कस अबाउट द आईज, ठीक है। तो फ्रॉग का आईज कैसा है, आई आर हैविंग अपर आईलिड which are what, movable, ठीक है, and also they are having a lower eyelid which is vestigial, which is what, ठीक है। तो eyes of the frog is having, one is your upper eyelid, another is your lower eyelid, ठीक है। फ्रॉग की आईज कैसा है, अगर हम लोग देखेंगे फ्रॉग की आईज कैसी है, उनके आईज में ये पोर्शन है तुम्हारा अपर आईलिड, ठीक है, और बिलो एक लोअर आईलिड है, जो कि आपका आईलिड क्या है, इमूवेबल है एंड वेस्टिजियल, कुछ फंक्शन नहीं है, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट, एंड आईलिड का फंक्शन क्या है, ये कवरिंग, मतलब ये कवर, मतलब अभी कुछ अगर आँखों में घुस जाए, हमारे आईलिड का क्या काम, क्या है, हमारे आँखों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन another membrane is called as nictitating membrane, ठीक है। So what is the function of these nictitating membrane, वो लोग क्या करता है ना, आईलिड के लाइक ऑन योर आई बॉल्स, लाइक कैसे, इफ आई मेक द डायग्राम, this one is your upper eyelid, this one is your lower eyelid, this is your eyeball, okay, this is your eyeball, and this is your pupil, okay। अगर nictitating, this one is your iris, and this thing is your nictitating membrane, ठीक है। Let me draw this with red. This thing is iris, this one is your pupil, this one is your upper eyelid, this one is your lower eyelid, and wait, this is what your nictitating membrane, ये आँख की तरह नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए कुछ लोग इसको मिस्टेकली बोल देते हैं, क्या, थर्ड आईलिड बोल देते हैं, ठीक है, इसको nictitating membrane को। सो इसका फंक्शन क्या है, ये जस्ट अबव द आईलिड, ये इसका लोकेशन है, एंड इसका फंक्शन क्या है, ये फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्ट करता है आँखों को, फ्रॉम द
मड एंड वाटर। ठीक है, ये क्या करता है ना, आँखों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मड एंड वाटर। ठीक है, नाउ another structure is your tympanum। ठीक है, अभी ईयर के बारे में बोलेंगे। ईयर्स, ईयर में क्या आ जाएगा, tympanum which work as a ears, which है ears। tympanum कहाँ पे प्रेजेंट है, this thing is your tympanum। okay, I have a photograph of your nictitating membrane, let me show you this first। yeah, this one is your nictitating membrane। yeah, this thing, yeah. Can you see this thing is your, this membrane is your just above the, this one is your lower eyelid, yeah, this one is your lower eyelid, and just above the lower eyelid nictitating membrane is present, a membrane which covers the eyes of amphibians, and they help in the extra protection from the mud and water। ठीक है, क्योंकि फ्रॉग को ऐसे, मैं अभी बोल रही थी कि समर स्लिप वो लोग करते हैं, तो समर स्लिप के दौरान वो लोग क्या करते हैं ना, दे मड के इनसाइड वो लोग छुप जाते हैं, तो वो लोग वाटर में भी रहते हैं, तो कैसे उनको आईबॉल को प्रोटेक्शन के लिए उनको चाहिए होगी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो कि nictitating membrane प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ईयर्स। ईयर्स में उनका क्या आ जाएगा, टिम्पैनम, जिसको कि जो कि वर्क करता है एज ईयर्स। इसका फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन, रिसीव्स साउंड सिग्नल्स। ठीक है, रिसीव्स साउंड सिग्नल्स। ठीक है, समझ आ गया टिम्पैनम का फंक्शन क्या है। ऑल्सो नॉस्ट्रल्स, दे हैव नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल नेयर्स। ये क्या है, नोज़ की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, नॉस्ट्रल्स मतलब एक्सटर्नल नेयर जो कि नोज़ की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, देन लेट अस डिस्कस अबाउट देयर फोर लिम्ब। ठीक है, फोर लिम्स आर ऑफ हाउ मेनी डिजिट, 4 डिजिट्स। ठीक है, 4 लिम्ब, 4 डिजिट्स। ठीक है, या दिस इज़ अनदर डायग्राम जहाँ ये है आपका 4 लिम्ब, यह आपका 4 लिम्ब, सामने वाला ये वाला पोर्शन, ये वाला हाइंड लिम्ब। यहाँ पे अच्छे से डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो ये वाला डायग्राम मैं हटा देती हूँ। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और एक डायग्राम, या नो, देयर इज़ नो क्लियर डायग्राम ऑफ 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। ठीक है, सो 4 लिम्ब में कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम में क्लियरली मेंशन किया है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है, लेकिन हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स है। यहाँ पे डायग्राम में मैंने मेंशन किया है। 4 लिम्ब में कितना डिजिट है, 4 डिजिट्स। लाइकवाइज हाइंड लिम्ब में कितना डिजिट्स है, 5 डिजिट्स। ठीक है, एंड हाइंड लिम्ब्स आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन 4 लिम्ब। ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करता है जंपिंग में हेल्प करता है कि नहीं। एंड बोथ द 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब आपको क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है, ऑल्सो लीपिंग एंड बोरोइंग में हेल्प करता है। ठीक है, ऑल एंड हाँ, अभी अगर मैं हाइंड लिम्ब का डायग्राम ड्रॉ करूँ, फाइव डिजिट्स है, तो यहाँ पे ना ऐसे करके वेव्ड फिट। अच्छा, वो पिछले वाली डायग्राम जो मैंने डिलीट कर दिया उसमें क्या था, ओके, सो लेट
me find that previous diagram, photograph. Yeah, this one. Just look at this diagram. फोटोग्राफ यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, वेब्ड है, वेब्ड फिट. ये क्या है, हैंड लिम्ब है, हैंड लिम्ब है. ये क्या है, फोर लिम्ब, ये फोर लिम्ब है. तो फोर लिम्ब में वेब्ड फिट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. लेकिन हैंड लिम्ब में क्या दिख रहा है, ऐसे वेब्ड फिट. ठीक है, हैंड लिम्ब में सो क्या है, वेब्ड फिट है. क्या है, वेब्ड फिट. ठीक है, ऐसे 2 डिजिट्स के बीच ऐसे वेब्स प्रेजेंट है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है. ठीक है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है. ठीक है, एंड another point is they show sexual dimorphism. In biology, if any word is a very difficult or a big word, we divide that word into 2 terms. ठीक है, डाई मतलब 2, मॉर्फिज्म मतलब morphological structures. ठीक है, so if I'll talk about sorry I have forgot to explain what is morphology says. So morphology means in case of animals the study of visible features. ठीक है, so morphology refers to what, study of visible feature. in case of animals क्या है, जो external appearances है, like organs or a part of body, उसको स्टडी करने को द स्टडी ऑफ विजिबल और एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. व्हेन एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एनी एनिमल. ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का डिफरेंसेस आपको पता चल गया. तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब डाई मतलब 2, मॉर्फोलॉजी मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मॉर्फ मतलब बॉडी फॉर्म्स डिफरेंट होता है. ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल्स एंड फीमेल्स आर ऑफ डिफरेंट अपीयरेंसेस. ठीक है, मेल एंड फीमेल्स आर ऑफ डिफरेंट अपीयरेंसेस. समझ आ गया. तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल में कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा एज इफ आई विल कंपेयर विथ फीमेल्स. ठीक है, सो मेल में क्या डिफरेंट फीचर है ना, वोकल सैक्स होता है. ठीक है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे अभी जो बारिश की सीज़न चल रही है, अभी हर जगह मेंढक लोग क्या करते हैं, के हर जगह ऐसा साउंड सुनाई देता है कि नहीं, सुनाई देता है. तो ये सब ना नॉर्मली मेल लोग अपना आवाज़ निकालते हैं. ठीक है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में मेल फ्रॉग पोजेस क्या पोजेस करते हैं, वोकल सैक्स पोजेस करते हैं एंड विच आर मोस्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. मोस्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग विच ब्रीडिंग, या तो मोस्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. ठीक है, तो जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में मेल मेंबर्स में क्या होता है, वोकल सैक्स होता है जो कि मोस्ट डेवलप्ड होता है ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन्स. तो ब्रीडिंग सीजन में क्या करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा ऐसे कि साउंड करके लाइक इफ़ यू विल सी लाइक near our any water body for example near the pond, और अभी जो बारिश हो रहे हैं ना, हर जगह पे पानी जम जाता है लाइक बहुत गड्ढे एंड ऑल में, तो वहाँ पे मेंढक क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं उस जगह पे, सो दैट कि वो एक ना मतलब कॉल है, मेटिंग वाला कॉल बोल सकते हैं, जो क्रॉकिंग वाला साउंड होता है ना, मेल फ्रॉग क्या करते हैं, पूरा लाउडर क्रॉक करके साउंड करते हैं देन द फीमेल
फीमेल भी क्रॉकिंग करके साउंड करते हैं, but male peculiar sound with the help of the male makes a peculiar sound with the help of their vocal cords, ठीक है, vocal sacs, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉकिंग साउंड, ठीक है। तो ये क्रॉकिंग साउंड मेल लोग करते हैं। मेल फ्रॉग क्रॉक इन द प्रेजेंस ऑफ टू वोकल सैक्स सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फ्लोर ऑफ देयर थ्रोट्स। मतलब अगर ये उनका थ्रोट होगा तो थ्रोट के ईच साइड में ना एक एक वोकल कॉर्ड मौजूद होगा, ठीक है। तो ईच साइड में एक एक वोकल सैक मौजूद होगा, जिससे कि वो लोग क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो एक्ट एज ए रिजोनेटर, मतलब एक रिजोनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब आप लोग समझ लो कि रिजोनेटर मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या है रिजोनेटर? एक्ट एज रिजोनेटर मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग। And these croaking sounds are what? Mating calls to attract female, ठीक है। So let us see our vocal sacs. So these are the vocal sac diagram of vocal sacs. Okay. Wait, एक second. So yeah. These are the what? ये सब जो दिख रहा है ना, क्या है? नियर देयर थ्रोट। ये थ्रोट है, थ्रोट के पास क्या होता है? वोकल सैक्स होता है। तो ये जहाँ पे भी वोकल सैक अगर आप लोगों को दिखेगा वो आँख बंद करके मेल मेंबर्स होंगे, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ओनली, मतलब मेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो दिखाता है। फर्स्ट वन इज योर वोकल सैक्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंट इन द मेल मेंबर्स एंड नियर देयर थ्रोट एंड दे प्रोड्यूस साउंड। दे एक्ट एज अ रिजोनेटर, मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन टू अट्रैक्ट द फीमेल्स। दे during breeding seasons they croak a bit more than females, like it is just a mating call for the female members, ठीक है। if अभी हम लोग जाएंगे सेकेंड फीचर पे, मतलब सेकेंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मेल, वो क्या है? कॉप्यूलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। एक कॉप्यूलेटरी पैड प्रेजेंट होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है? मेल मेंबर्स में, ठीक है। अगेन दिस इज प्रेजेंट इन मेल मेंबर्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? अगर उनका फीट का फोरलिम का डिजिट है, ठीक है, 1 2 3 4। तो फोरलिम में अगर उनकी फोरलिम में 1 2 3 4 डिजिट्स है उनकी फोरलिम में, तो उनका फर्स्ट डिजिट में एक कॉप्यूलेटरी पैड होगा। मतलब उसको क्या बोलते हैं? एक मतलब स्वेलिंग टाइप का होगा कॉप्यूलेटरी पैड जिसको बोलते हैं। चलो उनका डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ऐसा ये चीज़ आप लोग को दिख रहा है, ये रियल डायग्राम है। ये वाला चीज़ आपको दिख रहा है। फर्स्ट डिजिट में कहाँ पे होता है? ऑन देयर फर्स्ट डिजिट, ठीक है। ये दिख रहा है ऑन देयर फर्स्ट डिजिट। क्या होता है इसको? ये जो स्वेलिंग टाइप का चीज़ दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉप्यूलेटरी पैड। आई हैव ऑल्सो अनदर डायग्राम विच शोज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एंड ऑल दोज डायग्राम्स आर फ्रॉम गूगल ओनली, कॉपीड डायग्राम्स फ्रॉम द गूगल। So wait, this is your what? Copulatory pad, ठीक है, which is present again in the male members, and these are also called as like nuptial pads, ठीक है।
इनको ऑल्सो क्या बोलते हैं, नप्शियल क्या नप्शियल पैड्स भी बोलते हैं। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द इनर फिंगर ऑफ मतलब जो मतलब फर्स्ट डिजिट होता है ना, उनके डिजिट मतलब फर्स्ट डिजिट ऑफ देयर फोरलिम्ब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में another diagram I have, okay, which shows, इसमें क्या दिखाया है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कैसे डिफर करता है इन मेल मेंबर्स एंड फीमेल मेंबर्स। मेल में क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, वोकल सैक्स है जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है। फीमेल केस में नो वोकल्स है। सिमिलरली फर्स्ट डिजिट्स ऑफ देयर फोरलिम्ब, फोरलिम्ब और हाइंडलिम्ब में कैसे, फोरलिम्ब और हाइंडलिम्ब में कैसे डिफरेंस पता चलेगा, फोरलिम्ब में 1 2 3 4 डिजिट्स है, जैसे अगर हाइंडलिम्ब होगा तो फिर 5 डिजिट्स होगा और वो लोग वेब्ड होंगे। फोरलिम्ब वेब्ड है कि नहीं है फोरलिम्ब वेब्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, 4 डिजिट्स है और ईच मतलब फर्स्ट डिजिट में ऐसे एक स्वेलिंग टाइप का रीजन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब, ठीक है। ये है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन द फ्रॉग, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉपुलेटरी पैड्स का फंक्शन क्या है, अगर वो देखेंगे कि भाई ये प्रेजेंट क्यों है फिर फ्रॉग में, क्योंकि देखो ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग के टाइम क्या होता है, मैं डायग्राम कर देती हूँ, एक सेकेंड। अगर दिस वन इज योर फीमेल, फीमेल नीचे रहता है, ठीक है, दिस वन इज ए फीमेल, काम चला लो, ये थोड़ा लाइक दिखेगा कि नहीं आई डोंट नो, मेंढक की तरह बट बस दिख जाए, ये ऊपर वाला आपका मेल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी guys, I had to draw another diagram. So if this one is your male member, yeah, this one is your male member, and your female member I'm drawing in another color, okay। ये हो गया आपका मेल मेंबर की फोरलिम्ब, ठीक है। दिस वन इज योर फोरलिम्ब, ये क्या है, मेटिंग। ड्यूरिंग मेटिंग क्या होता है ना, मेल पहले फीमेल एग ले करता है टूवर्ड्स द आउटसाइड, इनका क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड ओवा सेल्स ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। पहले क्या करते हैं, फीमेल एग ले करते हैं, देन मेल क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना स्पर्म्स ले करते हैं, ठीक है। तो जो मेटिंग उनका मेटिंग जो पोजीशन होता है ना, उसमें क्या करता है ना, द मेल मेंबर हैव टू होल्ड द फीमेल मेंबर लाइक दिस फॉर देयर सक्सेसफुल मेटिंग, ठीक है। तो उनके हाथ में ना, ऐसे हाथ में एक जगह पे ऐसे स्वेलिंग होता है, सो दैट ना वो ऐसे उनको उनके मतलब उनके लाइक बोल सकते हैं उनके नेक के पास, उनके पास तो नेक नहीं है, तो फिर ट्रंक रीजन के पास वो लोग ऐसे क्लच करके उसको पकड़ सके, ठीक है। इसीलिए फॉर होल्डिंग, टू होल्ड द फीमेल मेंबर दे हैव क्या, कॉपुलेटरी पैड। तो ये हेल्प किस में करता है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन टू होल्ड द फीमेल मेंबर। समझ आ गया, दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। So if there is any doubt, let me know. So let's have a quick revise of our lesson that we have
studied today. So आज हम लोग पढ़े क्या पढ़े ना, हम लोग पढ़े फ्रॉग की नाम, फ्रॉग की साइंटिफिक नेम है जो कि इंडियन कॉमन इंडियन फ्रॉग है, जिसका कि साइंटिफिक नेम है होप्लोबैथ्रिकस टाइगरिनस, होप्लोबैथ्रिकस टाइगरिनस, जिसका कि पुराना नाम था रेना टाइग्रिना। उसका फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा फाइलम में है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास सुपर क्लास और टेट्रापोडा। क्लास क्या है, एम्फीबिया है। एम्फीबिया का मतलब है एम्फीबायस, मतलब दे कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज लैंड। क्या ऑर्डर क्या है, एन्यूरा है। फैमिली है रैनिडे। जीनस है रैना और हैप्लोबैथ्रिकस, और स्पीसीज है टिग्रीना और टाइगरस। ठीक है। हैबिटेट क्या है, वो लोग कहाँ पे रहते हैं, पॉन्ड पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा वाटर सोर्सेज के पास ज़्यादा रहता है। ठीक है, जहाँ पे लैंड और वाटर बोथ रहेगा। ठीक है। एम्फीबायोस मतलब डुअल हैबिटेट, और हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फीडिंग क्या है, देयर एडल्ट, वो लोग क्या है, कैनिवोरस है। वो लोग लाइक ऐसे ही एक नॉर्मल कीड़ा को देखेंगे और वो उसको ऐसे टंग ट्विस्ट करके निगल लेंगे। ठीक है, तो पूरा डायरेक्टली एज इट इज़ पूरा जिंदा कीड़ा को वो लोग निगल लेते हैं। ठीक है, तो आफ्टर दैट द लार्वा इज व्हाट, टेडपोल लार्वा विच आर हार्बिवोरस इन नेचर। Then Poikilothermus, they are cold-blooded animals. Their body temperature is not constant, so that's why they have to maintain their body temperature during peak summer and during peak winter. Like बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा धूप में वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं। विंटर में वो लोग विंटर स्लीप करते हैं, जिसको कि हम लोग हिबरनेशन बोलते हैं। समर में वो लोग समर स्लीप करते हैं, जिसको कि हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। तो विंटर स्लीप के टाइम में वो लोग खाते क्या है, वो लोग उसी अराउंड कुछ मंथ, 4 to 5 2 3 मंथ जब तक विंटर रहेगा तब तक वो क्या करते हैं ना, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पीरियड में उनके बॉडी में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लाइकोजन है लिवर में उनका स्टोर होके रहता है, उसको खाना खाते हैं। रेस्पायर कैसे करते हैं, बकल क्या, वो लोग उस टाइम ना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। देन उनका और एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कैमोफ्लेज। वो लोग क्या करते हैं ना, सराउंडिंग के लाइक अकॉर्डिंग दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर, और उस कलरिंग चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कलरेशन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोले, दीज आर सम स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्रॉग और रेना टाइग्रिना और हैप्लोबैथ्रिकस टाइगरिनस। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी में क्या आ जाएगा, उनका बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। दे डू नॉट हैव एनी नेक और टेल। दे हैव आईज एंड दस आईज आर हैविंग अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड. Upper eyelid is movable but the lower eyelid are not movable. They are just present as vestigial organ. They have another structure that is called as nictitating membrane, which provides the eye an extra protection, and they help in the swimming they help in from the mud. ठीक है, उनका स्किन कलर कैसा है, द डॉर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन कलर का है, एंड वेंट्रल साइड में क्या बोली मैंने, वेंट्रल साइड अभी बोल रही थी, वेट एक सेकेंड। ठीक है, वेंट्रल साइड क्या है, पॉल येलो कलर की है वेंट्रल साइड, और डॉर्सल साइड क्या है, ऑलिव ग्रीन है विद अ लॉट ऑफ डार्क पैचेस। ठीक है, चलो इनका ऑलिव ग्रीन थोड़ा कर देती हूँ मैं, एक सेकेंड। दिस वन इज योर ऑलिव ग्रीन कलर। ठीक है, विथ अ लॉट ऑफ डार्क पैचेस। ठीक है, समझ आ गया। सो दे हैव नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल लेयर्स, जिससे कि वो लोग बोकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करते हैं। उनके पास टिम्पैनम है जो कि एक्ट करता है ईयर के तरह। उनके बॉडी कलर, स्किन हमेशा मॉइस्ट रहता है, स्लिपरी रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। एंड ऑल्सो वे हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोरलिम्ब एंड हाइंडलिम्ब। हाइंडलिम्ब में क्या रहता है, वेब्ड डिजिट रहता है, एंड फोरलिम्ब में क्या रहता है, नो डिजिट, एंड फोरलिम्ब में ओनली फोर ही डिजिट्स रहते हैं, जबकि हाइंडलिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं। हाइंडलिम्ब में और बोथ हम लोगों का स्विमिंग, लीपिंग, बोरिंग सभी में हेल्प करता है। और अगर हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में देखेंगे तो मेल में 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ योर वोकल सैक्स, वन इज़ योर वोकल सैक्स। ठीक है,
अनदर इज योर वन इज योर वोकल सैक्स, जिसके जो कि क्रॉकिंग साउंड निकालता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एंड वर्क एज अ रिजोनेटर, ठीक है, मोस्ट डेवलप ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एंड attract they helps in the attracting of the females, right? So the vocal sacs and male members. And if I'll talk about the another structure, that is your copulatory pad, which help the male to hold the female during mating, ठीक है. This is all about the structural organization, morphology and your introduction part, general characteristics of frog. So next part we'll discuss in our next class. So thank you, have a nice day.